good Thank you, morning to ma'am. you all. And yesterday you have missed the lecture, so no problem. Yes, Whenever we have extra time, we will discuss it. And yesterday I had given general introduction about the ethical reason, what ethics is and what does it mean, what is its classification, etc., etc. Am I audible? Am I yes, ma'am. okay? Yes, ma'am. So today, before starting our lecture, I just wanted you to please note down the syllabus. Uh, if you are able to reply, then I will not. But the first unit which I would like to start as basic preparation for the unit that I would like to discuss today. The unit one, this is the paper third, fourth C, and nomenclature is applied ethics one because it is in semester three, and applied ethics two will be in semester fourth. The unit one, the main heading of the unit one is basic concepts. Okay, and deals with the nature. The subtopics are this unit: nature of ethics, morality, and applied ethics. Then another topic which is also important is the Indian perspective, that is Indian understanding of ethics. Okay, Okay, ma'am. this I will begin with this unit first. In the chronological order, I will deal it. The first unit, then second, then third, and then fourth. So prior to the whole paper, whole syllabi of applied ethics, I had given some general information yesterday, but the issues and the problems which we discussed under the heading applied ethics, we must know first the very fundamentals of ethics, which in compliance with the theories, ethical theories, or ethical norms, or ethical standards, will help us in deciding any particular course of action, whether it is a right one or it is a wrong one, whether it is legally, ethically acceptable or not acceptable. And if these are the issues which are not ethically acceptable, then what we ought to do, and the main problem in the conflicting situations, what we ought to do, what we should do, or what we have to choose between the two contradictory or multiple options available in the circumstances where we exist. So the first thing I would like to deal is, you must know the postulates of morality, which is very important with reference to the applied ethics. Postulates of morality are introduced by Immanuel Kant, and he said that there are three fundamental postulates of morality. The first one is the freedom of the will. And if you go through the nature of ethics, which we will discuss later on, as per the topic of the unit 1, we will find that freedom of the will is the key concept of ethics. We don't judge any particular course of action, or we cannot give decisions on any course of action until and unless the action has been performed by using his or her own free will, or you can say
exercising the freedom of the will. Okay? So the freedom of the will means the freedom to select or to choose within the given option. And first we must know what does freedom mean. It's a very simple word which we use day to day in our day to day life and very common, and we think that we well understood the notion. May I ask you to give me a brief meaning or your understanding about the notion of freedom? Can anyone? Freedom is the will to decide and choose between different options. That is freedom of the will. I am asking about the freedom. Is there any Okay. difference you find between freedom and the freedom of the will? Hmm. Think over. Rawat, would you please? Please speak freely in the class so that I may know where is the problem and where you are unable to describe the thing, because philosophy is a method to understand the things properly. So that's why the very petty things we deal daily, the petty words we daily use in our language. But when we ask to define it or explain it, we find us unable to explain. That's why, and freedom is the key word of the morality. So should I wait for Rawat response? Rawat, are you hearing? No one else you? I don't think he's hearing that. What is the Okay, okay. difference between? Yeah, I would like to give you the first. The word freedom means, as per the dictionary and as per the general use, freedom from the constraints. That constraints, there are a variety of constraints, maybe physical, maybe mental, maybe economical, or so many kinds. But freedom itself means free from the constraints. And when we apply this freedom with reference to our conduct, that means we are in requirement to exercise our freedom of the will. And will means to choose, to select any particular course of action. But another thing is associated with this is that freedom can only be exercised when the options are available. Availability of options is a necessary condition for exercising the freedom of the will. If we don't have any option, then we can't be able to exercise our freedom of the will. Is it clear? Yes, ma'am. So, freedom of the will means freedom, not only physical freedom, psychological or mental freedom, or we can say the freedom from any outer and inner forces. Totally free. But freedom doesn't mean license. Mind it. Freedom doesn't mean license. It means you are free to do whatever you want. It doesn't mean. When we talk about the freedom of the will, it means you are very much free to do actions whatever you want. For example, you are free in the situation if you want to do the class, or if you don't want to attend the class, you have freedom. If you want to move your hand, you are very much free. If you wanted to move within the room, you are free. If you wanted to go outside, walk outside, you are very much free. It means physical freedom.
Psychological freedom is you are psychologically, mentally free to think over. You can think about spirituality, you can think about the money, you can think about the morality. You are very much free to go through the nature of options. You are very much free to go through the nature of objects available in the world, and simultaneously you are very much free to act according to your own will without any inner and outer constraint. Both the things, inner and outer constraint. Can liberty be used interchangeably as freedom, or liberty, the concept of liberty is different with freedom? No, liberty and freedom both will come to you. Uh, I just would like to say, and you must be very much clear in your mind, mm, uh, Manisha, Manashiva, that liberty and freedom both are synonymous words. But the word liberty is mostly used in the political sense. okay. When Yes, we ma'am. use it, democratic ideal, suppose democratic ideal, then liberty is our democratic ideal. Fraternity is our democratic ideal. Equality is our democratic ideal. As well as justice is our democratic ideal. But when we say freedom of the will, then we have you ever seen that we say liberty of the will? Never. No. This word freedom is especially used. Uh, yes, excuse me for 1 minute. यहाँ पे लड्डू का डिब्बा रखा है, when we use it, sorry, my maid is working. Uh, Okay. when we use the word freedom, it means then it means that we use this word especially in a specific sense, and which you all will be able to understand when we discuss the problems of ethics, which comes under the heading nature of ethics. You are Akriti. Akriti, okay? Okay. You want in Hindi also, okay? So I will give you. First I complete this notion in English, then I will explain it in Hindi also. And anything, if it is seems to you that it is difficult to grasp, without any hesitation, you are very much free to ask. Okay? So freedom is especially used when we discuss in day-to-day life. Then freedom means freedom of speech, freedom of action, as well as of freedom of movement and freedom of the choice. And freedom of the choice is directly related to the ethics. Because in ethics, you have to choose between right and wrong, ought and duty, good and bad, good and evil, good and duty, right and duty, etc. So, this notion of freedom of the will is the key concept or key notion of ethics. And when we define the nature of ethics, we know that if someone has not performed any course of action which exercising his or her own free will, the person cannot be held responsible for the action which a person has performed. For example, if someone has asked you at gunpoint to shoot someone, then you are very much, are you free? You are not free. You are constrained by the trigger of pistol, because if you act oppositely, you will be shot down by the person.
So you are under constraints. And if you are under constraints, it means whatever you are performing, that doesn't belong to your own free will. You are not exercising your freedom of the will. You are performing any action under compulsion. And that means it never comes in the domain of ethics. So freedom of the will is the first condition for acting morally. And secondly, for exercising freedom of the will, availability of the options are also the necessary condition. In the absence of options, we may not be able to exercise our own freedom of the. Is it clear to other students? Yes, ma'am. Now I would like to brief in Hindi also. कल के लेक्चर में मैंने आपको नीति शास्त्र के एक सामान्य परिचय दिया था कि नीति शास्त्र क्या है और कैसे इसका विभाजन किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में। एक नियामक नीति शास्त्र, दूसरा आदि नीति शास्त्र और तीसरा व्यवहारिक, या जिसको कहना चाहिए कि कुछ लोग जो है अप्लाइड एथिक्स को जो है वो एक अलग नाम दे देते हैं, जिससे मूलतः लोग व्यवहारिक नीति शास्त्र का नाम प्रयोग करते हैं, लेकिन एक और वर्ड भी है जो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। तो उन सब के विषय में मैंने आपको एक सामान्य परिचय देने का प्रयास किया था, ताकि जो अप्लाइड एथिक्स का, व्यवहारिक नीति शास्त्र का ये जो पेपर आप पढ़ रहे हैं, आपने चयन किया है, इसके कुछ मूलभूत अवधारणाएं आपको स्पष्ट हो जाएं और आप अच्छे से उन कॉन्सेप्ट, उन अवधारणाओं को समझ सकें जो आपके सिलेबस में है। आप सभी जानते हैं कि केवल सिलेबस में तो टॉपिक मेंशन होता है, लेकिन वो विषय किससे संबंधित है, उसका क्या परिणाम है, क्या उद्देश्य है, क्या स्वरूप है, कैसे हम उसे अपने रोज के जीवन में लागू कर सकते हैं या करते हैं, इन सब बातों को जानने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो उसके लिए आधारभूत अनिवार्यताएं होती हैं। इसी दृष्टि से इसी क्रम में कल, क्योंकि समय खत्म हो गया था, तो मैंने आपको नहीं बताया था, एक बहुत मूलभूत अवधारणा है जो मैंने पहले भी आपको अधिनीति शास्त्र पढ़ाते समय बताई थी, कि नैतिकता की पूर्व मान्यताएं, यानी कि जिनके अभाव में नैतिकता या नैतिक आचरण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये नैतिकता की पूर्व मान्यताएं इमैनुअल कांट ने, जो जर्मन दार्शनिक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में जो है क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, उसमें, और इसके साथ ही साथ जो आपके कोर्स में है ग्राउंडवर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, उस पुस्तक में भी इसका जिक्र किया है, लेकिन उसका केवल एक सेगमेंट, फ्रीडम ऑफ द विल, जिसे उन्होंने उस पुस्तक में ऑटोनॉमी ऑफ द विल करके इंट्रोड्यूस किया है, उस तरह से को वर्णित किया है जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब सबसे पहला, क्योंकि सबसे पहली अनिवार्यता जो है वो ये है कि संकल्प की स्वतंत्रता है क्या, या स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है, हम स्वतंत्रता से क्या मतलब समझते हैं। हम इस शब्द को रोज के जीवन में लेकिन जब हम इसके अर्थ की व्याख्या करते हैं तो हमें कई बार हमें आप कि हम कैसे इस चीज को व्याख्यायित करें या परिभाषित करें। तो मैंने अभी आप किसी भी प्रकार की बाध्यता से मुक्त होना, और वो बाध्यता शारीरिक बाध्यता भी हो सकती है, मानसिक बाध्यता भी हो सकती है, बाह्य बाध्यता भी हो सकती है, और परिस्थितिजन्य बाध्यता भी हो सकती है, और
आपकी आंतरिक बाध्यता भी हो सकती है कि आप स्वयं अपने आप को कहीं पे मजबूर समझते हो, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं ना मजबूर। तो वो मजबूरी का मतलब ये है कि वो कॉन्स्टेंट, कि हम जो चीज चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो नहीं चाहते हैं वो करने के लिए या तो हमें कहा जा रहा है या हम करने के लिए विवश हैं। तो शाब्दिक अर्थ में हिंदी वालों के लिए स्पेशली ये जानना जरूरी है कि किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता है। और एक बहुत अच्छा प्रश्न जो मनोज शिवा ने उठाया कि फ्रीडम और लिबर्टी ये दोनों अलग अलग हैं या एक है, तो आपको हिंदी में तो वहां पर भी लिबर्टी का मीनिंग स्वतंत्रता है, और यहाँ पर फ्रीडम का मीनिंग भी स्वतंत्रता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लिबर्टी शब्द जो है वो मुख्य रूप से राजनीतिक परिदृश्य पे ज्यादा प्रयुक्त होता है, और स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में और उसके साथ ही साथ अपने नैतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आसानी से करते हैं, प्रयोग करते हैं और उसका अर्थ भी समझते हैं। लेकिन जब हम नैतिक क्षेत्र में या नीति शास्त्र के क्षेत्र में स्वतंत्रता और विशेष रूप से संकल्प की स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं है। वो स्वतंत्रता बाहर घूमने की नहीं है, वो स्वतंत्रता आपके शारीरिक चेष्टाओं की नहीं है कि आप अपना हाथ हिलाइए, पैर हिलाइए, सर हिलाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो स्वतंत्रता मुख्य रूप से मानसिक है, साइकोलॉजिकल है, मेंटल है, कि जहां पर आपको चिंतन की स्वतंत्रता की बात हो रही है। और क्योंकि नीति शास्त्र आचरण का विज्ञान है, तो प्रमुख रूप से ये संबंधित है हमारे संकल्प चयन करने की क्षमता की स्वतंत्रता, और उसके साथ ही साथ उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। तो संकल्प की स्वतंत्रता का मुख्य अभिप्राय ये है कि हम अपने इच्छा अनुसार किसी भी कर्म का चयन कर सकें, और उस कर्म को संपादित करने में हमें किसी प्रकार का आंतरिक या बाह्य दबाव नहीं होना चाहिए। हमको कोई उस कर्म को करने या ना करने के लिए आंतरिक और बाह्य किसी भी तरीके से विवश ना कर सके। और इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो लोग, अब डेफिनेशन है ना कि फ्रीडम फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स, तो अब आप कहेंगे कि एक कैदी जो जेल में बंद है वो तो अंडर कॉन्स्टेंट है, उसके ऊपर तो बाध्यता है कि वो जेल की सलाखों के बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन वहां पर भी देखिए आप, उसको स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्या है कि उसको एक निश्चित परिधि के बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है। वो कॉन्स्टेंट है, वो दबाव है, लेकिन वो जेल में रहते हुए भी स्वतंत्र है कि वो चाहे तो कुछ किताबें पढ़ ले, चाहे तो कुछ लेखन कर ले, चाहे तो अपना हाथ हिलाए, चाहे तो पैर हिलाए, चाहे सर हिलाए, चाहे वो कुछ भी बोले, कोई गाना गा सकता है, वो बैठ सकता है, लेट सकता है, सो सकता है, जाग सकता है, सपने देख सकता है, वगैरह वगैरह। यानी एक निश्चित दायरे के अंदर उसको भी स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि वो जेल में बंद है तो उसको किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता है। लेकिन उसके पास जो विकल्प हैं, वो विकल्प कैसे हैं? विकल्प हैं कि वो अपने आप को एक निश्चित दायरे में शारीरिक चेष्टाएं कर सकता है। मानसिक स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी चिंतन कर सकता है, कुछ भी पठन कर सकता है, कुछ भी मनन कर सकता है, बहुत सारी गतिविधियां कर सकता है। लेकिन बस एक दबाव है कि वो उन जेल के कोठरी या कमरे के बाहर नहीं आ सकता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि स्वतंत्रता है, उसमें उसके भी विभिन्न स्वरूप होते हैं और विभिन्न दायरे होते हैं, और उन दायरों के अंतर्गत ही उसका अर्थ स्पष्ट होता है, उसकी सीमा निर्धारित होती है, और उससे जुड़े हुए विकल्प उपस्थित रहते हैं। तो संकल्प की स्वतंत्रता जो है वो नीति शास्त्र के लिए एक
बहुत आधारभूत, या जिसको आप कहिए कि नींव है, नीति शास्त्र का जो फाउंडेशन है वो फ्रीडम ऑफ द विल, संकल्प की स्वतंत्रता है। संकल्प की स्वतंत्रता के अभाव में हम किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कर्मों के लिए ना तो हम दोषी ठहरा सकते हैं और ना ही उसे दंडित कर सकते हैं। तो ये जो संकल्प की स्वतंत्रता है, ये एक नैतिकता का एक अनिवार्य शर्त है। इसके अभाव में हम नैतिकता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। Is it मैम ये जो clear? प्रीसेट नोशंस होते हैं मैम एथिकल टर्म्स के, या जो शास्त्र वगैरह है मैम, क्या ये सब फॉलो करना, ये दीज आर नॉट काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट फॉर आवर फ्रीडम ऑफ विल और एनीथिंग लाइक दैट? ये एक तरीके के कंस्ट्रेंट नहीं होते? या फिर जो पास्ट में कोई एक्सपीरियंसेस हो एम्पिरिकल, मतलब या उन सब चीजों से हमारा क्या फ्रीडम ऑफ विल जो है वो डिसाइड नहीं होता है मैम? मतलब लाइक हाँ ये इस टाइप की चीज है। हाँ, देखिए इसमें अभी मैंने जैसे बात कही ना कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता की सीमाएं जो हैं वो यस। कैसे, हाँ, परिस्थिति में निर्भर करती हैं। अब जैसे ये कि आपने जो कुछ भी पहले आपके साथ घटना हुई, उस यस घटना मैम। से आपकी मेंटल फ्रीडम प्रभावित हो सकती है कि आपका यस मैम। माइंडसेट जो है, जैसे किसी के साथ लाइफ में जब अगर बहुत कुछ गलत होता रहा है तो उसकी सोच जो है वो निगेटिव बन जाती है। यस मैम, एग्जैक्टली। यस मैम। हाँ, तो वो जो उसका नेगेटिव एटीट्यूड है दैट इज कॉज्ड बाय द प्रीवियस कंडीशंस, और वो यस मैम। प्रीवियस जो कॉज हैं उनको उसका डिटरमिनिंग फैक्टर माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो फ्री एक्शन परफॉर्म करने में फ्री नहीं है। ओके। उसका इम्पैक्ट है, लेकिन वो यस मैम। फिजिकली एक्शन तो हम फिजिकली परफॉर्म करते हैं ना, यस मैम। तो एक्शन परफॉर्म करने वो फ्री है। तो फ्रीडम ऑफ द ओके। विल है, लेकिन उसकी यस विल, मैम। क्योंकि उसका पहले की कंडीशन है उनसे वो मतलब प्रभावित हो इन्फ्लुएंस्ड सकती है। है, उसका इफेक्ट। हम्म। हाँ, हम्म। लेकिन फ्रीडम है, फ्रीडम को हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग ओके होते हैं मैम। ना कि कई बार आप पिक्चरों में भी देखते हैं और उसमें भी कि आपके साथ कुछ गलत हुआ तो यस आप मैम। दूसरे के साथ भी ऐसा करना चाहते हैं। और यस ये मैम। क्या है, आपको स्वतंत्रता थी कि आप ऐसा करें और वैसा ना करें, लेकिन यस। आपने अपने इम्पल्सिव होकर के सब्जेक्टिव डिसीजन लेकर के आपने उससे रिवेंज लेने की एक्शन किया। तो यस हम मैम। आपके इस एक्शन को हम मॉरल उसमें रखेंगे, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये डिटर्मिनिंग फैक्टर है, जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, डिटर्मिनिंग भी नहीं, ओके मैम। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। तो ये आपके ऊपर है, आपको स्वतंत्रता है कि आप हम्म। अपने आंतरिक और बाह्य दबावों को अपने ऊपर हावी होना देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। लेकिन नीति शास्त्र आपको पूरी स्वतंत्रता देता है, वो आपको सिर्फ बताता है कि ये सही है, ये गलत है। अब चयन यस मैम। दोनों में से आपको करना है कि आप सही चयन करें या गलत चयन करें। फ्रीडम नहीं है, ये बात नहीं कह सकते हैं। ठीक यस। है, यस मैम। ये क्लियर मैंने हुआ? यस मैम। यस मैम। Thank you. Thank Yes, you. ma'am. Then, second postulate is that is the first postulate of morality is uh, universally acceptable. So you can say that unanimously accepted by all the ethical thinkers, whether they belong to East or they belong to West. चाहे वो भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंध रखते हैं या वो पाश्चात्य दर्शन से संबंध रखते हैं, दोनों ही तरह के नीति शास्त्र में सभी नैतिक दार्शनिकों ने संकल्प की स्वतंत्रता को नैतिकता की एक पूर्व मान्यता, आधारभूत अनिवार्यता के रूप में स्वीकार किया है। दूसरी जो दो और अवधारणाएं हैं, बहुत सारे दार्शनिक उन दोनों को, जिनका एग्जाम्पल हम अभी आपको एक्सप्लेन करते समय बताएंगे,
उन दो अवधारणाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कांट ने उसे स्वीकार किया है, क्योंकि ये हमने आपको बताया है ना कि फ्रीडम ऑफ द विल को तो सभी मानते हैं। नैतिकता की नींव है, फाउंडेशन ऑफ जो एथिक्स है, दैट इज फ्रीडम ऑफ द विल। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ द विल नो मॉरलिटी कैन बी एस्टेब्लिश्ड। किसी भी तरह का नैतिकता हम स्थापित ही नहीं कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों को स्थापित नहीं कर सकते हैं, नैतिक नियमों को स्थापित नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम उन नैतिक नियमों के अनुरूप कर्म करने की, संकल्प लेने की स्वतंत्रता व्यक्ति को ना दें। ठीक है, तो इसको सभी मानते हैं। दूसरा जो कांट ने दिया, कांट ने ही सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था, जैसा मैंने पहले बताया। कांट कहते हैं कि दूसरा जो पोस्टुलेट है वो है इमॉर्टेलिटी ऑफ द सोल, आत्मा की अमरता। अब आपके मन में बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न आएगा कि ये आत्मा की अमरता, अमरता तो ये सब रिलीजियस कॉन्सेप्ट हैं, धार्मिक प्रत्यय हैं, इसका नैतिकता से क्या लेना देना, आता है ना मन में। तो तुरंत अब कांट जैसा दार्शनिक, जो कि एक पाश्चात्य दार्शनिक है और साथ ही साथ बुद्धिवादी दार्शनिक है, और धर्म और धार्मिक मान्यताएं अधिकतर आस्था से जुड़ी होती हैं, तो वो बुद्धिवादी दार्शनिकों के, क्रिटिकल फिलोसफरों के, समीक्षावादी दार्शनिकों करके कैसे इस बात को नैतिकता की आधारभूत मान्यता के रूप में स्वीकार कर रहा है कि आत्मा की अमरता एक अनिवार्य नैतिक एक अनिवार्यता है। यदि आत्मा की अमरता की अवधारणा को हम स्वीकार नहीं करेंगे, if we don't accept the immortality of the soul, then we will be quite unable to give correct decisions on the actions performed by any particular person. Now the question arises, how it is related to our actions. You all might know immortality of the soul. It's not only the Indian concept. There is a misconception that only in Indian philosophy आत्मा की अमरता, ईश्वर वगैरह में विश्वास किया जाता है, but that is not true. In Western philosophy also, Western ethics also, they accept the concept of God. You might have studied in Western philosophy, in Descartes, Spinoza, Leibniz, etc. And in Indian philosophy also, we have the notion of immortality of soul as well as of the existence of God. So, immortality of soul means the soul. Next question comes, how could we define soul? हम आत्मा को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? Can anyone define आत्मा क्या है और आत्मा की अमरता से क्या मतलब है? जब हम ये कहते हैं कि आत्मा की अमरता नैतिकता की पूर्व मान्यता है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पहले इस बात को समझें तो कि अमरता किसे कहते हैं और आत्मा किसे कहते हैं। तो आत्मा की बात तो हम रोज बड़ी करते हैं कि अरे मेरी आत्मा को ये पसंद नहीं है, मेरी आत्मा इसकी गवाही नहीं देती है, मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम परिभाषित करने की बात करें तो क्या इतना सहज है आत्मा को परिभाषित करना? हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी भी कंटेक्स्ट में आप पाश्चात्य संदर्भ में भी परिभाषित करके बता सकते हैं और भारतीय संदर्भ में भी। तो कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? हम इंडियन फिलोसफी में तो उसी को चेतना बोलते हैं शायद, आत्मा कोई मतलब हम बुद्धिज्म वगैरह में। यस मैम। और वेस्टर्न फिलोसफी में? वेस्टर्न में कॉन्शियसनेस ही है, कॉन्शियसनेस। चेतना। कॉन्शियस, यस मैम। कॉन्शियसनेस को हिंदी में चेतना कहते हैं, है ना? यस मैम, तो यस मैम, यस मैम। कहते हैं ना कि जो है चेतना लक्षणों जीवा, जो परिभाषा भारतीय दर्शन में दी गई है
Yes, कि ma'am. हम जानते कैसे हैं चेतना को, तो उसका लक्षण, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉन्शियसनेस. अब Yes, ma'am. that is, in Western perspective, we would like to define. So then, suppose I ask, what is the distinction between the body and dead body? Living body and dead body. Living body means it is Consciousness. consciousness, conscious body. And when we talk about the dead body, it means consciousness less body, Yes, ma'am. Okay. absence of consciousness. Yes, That ma'am. means the consciousness is the essence of body, which is known in Indian perspective as soul, and in Western perspective, sometimes it is called soul, sometimes it is Sometimes also called consciousness. as mind. 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 Especially Descartes, especially if you remember, Descartes has always discusses the mind-body problem. And in Western philosophy, this problem is very, very popular. What is the relation between the mind and body? How the mind react to the body? How body perform according to the directions of the mind, etc., etc. So it's a big, major philosophical problem, mind-body problem, and that is known in Indian perspective. आत्मा की अवधारणा, आत्मा और शरीर का संबंध. अब यहाँ पर है आत्मा की अमरता. अब आपको समझना है कि कॉन्शियसनेस जिसको हम कह रहे हैं आत्मा, तो ये वास्तव में क्या है? ये शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है, डेड बॉडी के साथ ही. बॉडी की जब डेड होती है तो क्या कॉन्शियसनेस भी डेड हो जाती है, या ये एग्जिस्ट करती है बॉडी से सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली? दिस इज द इतना क्या है, बॉडी है, लेकिन विद द फिजिकल बॉडी, और इट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी. दैट इज द बेसिक क्वेश्चन. आत्मा जो है वो शरीर के मरने के साथ, समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाती है, या शरीर के मरने के बाद भी शेष रहती है. अब आपको मन में शायद ये विचार होगा कि भारतीय दर्शन में तो इसको माना जाता है कि आत्मा अमर है, लेकिन पाश्चात्य दार्शनिक ऐसा नहीं मानते हैं. तो ये अवधारणा भी बिल्कुल गलत है. पाश्चात्य दार्शनिकों में विशेष रूप से आपने थॉमस एक्वाइनस का नाम सुना होगा. बहुत मिडिल एज थिंकर हैं, बहुत फेमस हैं. ईश्वर के विषय में उन्होंने बहुत अच्छे तर्क दिए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगस्टाइन ने दिया है, मिडिल एज थिंकर्स ने स्पेशली, और मॉडर्न वेस्टर्न में स्पेशली डेकार्ट, स्पिनोजा ने माइंड बॉडी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है. और वो सब, इवन एरिस्टोटल भी, जो ग्रीक फिलोसोफर हैं, वो भी जो है वो आत्मा को, सोल की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं. एक्वाइनस ने तो यहाँ तक कहा है कि सोल के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं. वो तो प्लांट्स में भी सोल को मानते हैं, रूट्स में भी प्लांट मानते हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स में भी मानते हैं, जैसे हमारे क्या भारतीय दर्शन में. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन बिल्कुल भिन्न भिन्न है. तो आप आत्मा को मानते हैं, ये बात तय हो गई, पाश्चात्य दर्शन में भी और भारतीय दर्शन में भी. अब प्रश्न ये आता है कि आत्मा को मानने का अभिप्राय क्या है? तो आत्मा को मानने का अभिप्राय ये है कि आत्मा, जिसे हम चेतना के रूप में जानते हैं, चेतना के माध्यम से जानते हैं, अगर हम ये कहें ज्यादा उपयुक्त होगा कि हम आत्मा को चेतना के माध्यम से जानते हैं. तो ये जो आत्मा है, ये शरीर से अलग अपना अस्तित्व रखती है. और कैसा अस्तित्व रखती है? इटर्नल एग्जिस्टेंस. इट इज नॉट पेरिशेबल. ये मरणशील नहीं है. इट एग्जिस्ट फॉर एवर. इट इज एन एवरलास्टिंग एंटिटी. ये एक शाश्वत तत्व है. तत्व मीमांसा के 3 तत्व हैं ना, ईश्वर, आत्मा और जगत. तो आत्मा जो है वो कैसी है? शरीर के साथ बंधी हुई नहीं है, शरीर से सीमित नहीं है.
ये एक असीमित इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस है जो अपार्ट फ्रॉम बॉडी एग्जिस्ट and it exists after the death of the physical body, and because it exists forever, then whatever actions we perform, now comes the immortality. Why we said that soul is immortal? Immortal means it is never perishable. ये कभी भी मर नहीं सकती, जैसा कि भगवद गीता में भी कहा गया है कि ना तो इसे बुढ़ापा आता है, ना ये मर सकती है, ना इसे जला सकते हैं, ना इसे काट सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब ये हमेशा रहती है, तो इसके हमेशा रहने का क्या तात्पर्य है, क्या इसकी जरूरत है? एक दार्शनिक प्रश्न मन में आता है, बहुत सामान्य सा, हर एक में हम लोग भी, क्या जरूरत है आत्मा को मानने की? क्या जरूरत है इसको ये मानने की कि ये एक नित्य सत्ता है, हमेशा बनी रहने वाली सत्ता है? कभी आता है मन में ये प्रश्न? Yes, ma'am. Debatable question, ma'am. ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि हम आत्मा को क्यों, आत्मा शरीर के मरने के बाद रहती है कि नहीं रहती, हमसे क्या मतलब? हम तो मर गए, खत्म हो गए, है ना? बहुत साधारण आम आदमी भी इस बात को सोचता है, लेकिन जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं ना कि वो गहराई में जाकर उसके मूल अर्थ और मूल तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न आया कि हम क्यों आत्मा की अमरता में विश्वास करें, और यही क्रिटिसिज्म कांट के सामने भी ये प्रश्न उठाए गए कि हम क्यों इस बात को माने कि आत्मा अमर है और नैतिकता के क्षेत्र में उसकी क्या जरूरत है। तो ने उसको एक्सप्लेन किया, और आपके इंडियन सिस्टम में तो अद्वैत वेदांत उपनिषद और यहाँ तक कि जो हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स हैं उसमें बौद्ध जैन वगैरह भी इसको मानते हैं कि कर्म फल के लिए, कि जो हम कर्म करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन, एथिक्स इज द परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। तो कर्म जो करते हैं वो बिना परिणाम के नहीं हो, उनका कोई ना कोई परिणाम, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो परिणाम होना उसके लिए जरूरी है। अब वो परिणाम किसको मिलता है? परफॉर्मर को, जो कर्म करता है। तो परफॉर्मर को उसका परिणाम, it is very much possible कि the consequences of actions performed by a person can be given within his life, but there are so many actions which we performed in our day-to-day life, but their consequences are not given or not possible to experience within the limit of one life. So there is might be a self contradiction कि you have performed the action. For example, कि until the death, human body is performing so many actions. So the action will reap, कहते हैं ना, whatever you sow, as you will reap, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसे कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा, ये एक सनातन नियम है, ईस्टर्न में भी वेस्टर्न में भी। Law of karma is also acceptable to Western philosophers as well as to Indian philosophers. So then Kant has explained that the action which we performed in this life, there is a possibility that few or maximum actions which we have performed, their consequences we got in the present. But there is also another possibility that so other actions which we performed in this life, their consequences may not be reached to us within this finite life. So how can we reap the results of that actions? For that, we have to accept that there is a soul which have performed actions with this body,
but which never destroyed after the death of the body and will take birth again, and in that next birth he or she will reap the consequences of the actions which we have performed in our present life. So for that necessity, it is very, very important thing to accept the immortality of the soul. And they give examples, and Indian side also, the responses are given ki if we don't accept the immortality of soul, what will happen? That I have performed 10 actions, 8 I have reaped in the same life, but 2 are remaining. But in the next birth, if our soul is also changed, then what will happen? The consequences of these 2 actions which I have performed may not be given to us. They might be given to someone else because it is changing. If soul is changing, then the actions performed by A will be reaped or experienced by B, and the actions performed by B may be experienced by the C. So that is logical inconsistency. That is a self contradictory notion. अब हम कहें कि एक व्यक्ति ने चोरी की, लेकिन उस चोरी की सजा उस व्यक्ति को ना मिलकर दूसरे व्यक्ति को दी जाए, तो ये एथिकली गलत है, नैतिक रूप से भी गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है, और इसके साथ ही साथ दंड के विधानों के भी अनुरूप नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि जिसने कर्म किया हो, एक सामान्य सा प्रश्न लॉ ऑफ कर्म का, कि जिसने कर्म किया है उसी को उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, और उसको उसका परिणाम इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है और भविष्य के जीवन में भी प्राप्त हो सकता है, और इस जीवन में जो कुछ भी हम भोग रहे हैं वो हमारे पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम है। तो एक तो हमें लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करना होगा, और लॉ ऑफ कर्मा में अगर बिलीव करते हैं तो इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल जरूरी है। तो नैतिकता जो है, क्योंकि वो कर्मों से जुड़ी हुई है, तो यदि हम कर्मों को मानते हैं और कर्म फल में विश्वास रखते हैं, तो कर्म फल के उपभोग के लिए आत्मा की अमरता में विश्वास रखना अनिवार्य है। इसलिए कांट ने आत्मा की अमरता को नीति शास्त्र चाहे वो भारतीय हो या पाश्चात्य हो या आस्तिक हो या नास्तिक हो, ये भी ध्यान रखिएगा, सबको स्वीकार है। लेकिन जो लोग कर्म फल को स्वीकार ही नहीं करते हैं, कर्म में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए वो एक्सेप्शनल है। तो अब कर्म को अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए नीति शास्त्र का भी कोई प्रश्न नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। तो नीति शास्त्र को यदि हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, नैतिक सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, नैतिक मान्यताओं को मानते हैं, नैतिक जीवन को हम एक आदर्श जीवन के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमें संकल्प की स्वतंत्रता में भी विश्वास रखना होगा और आत्मा की अमरता में भी विश्वास रखना होगा। ये दो उसकी पूर्व मान्यताएं हैं। तीसरी मान्यता ईश्वर का अस्तित्व है, बट द टाइम इज ऑलरेडी ओवर, so that I will discuss in the next lecture on the coming Monday. Okay? Any problem? कोई प्रॉब्लम हो, I have a question. कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं, या अगर अभी नहीं पूछना चाहते हैं, दिमाग में आता है, नोट कर लीजिएगा। दूसरी क्लास जो हमारी नेक्स्ट मंडे को पड़ेगी, उसमें हम उस चीज को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड। ओके। Thank you.